हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे सीसीएस लीव रूल्स 1972 के इम्पोर्टेंट रूल्स 26, 27, 28 एंड 29 के तहत दिए गए फार्मूलाज है ना। 5/2, 5/3, 5/6, 1/10, 1/30, 1/18, 1/3, 7 फार्मूलाज हैं। तो इन फार्मूलाज का यूज करके हाउ वी कैन क्रेडिट और डेबिट द लीव इन द लीव अकाउंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक होता है वेकेशनल स्टाफ और दूसरा नॉन वेकेशनल। जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइब्रेरीज हैं गवर्नमेंट की, केवीएस है, एनवीएस है ना, स्कूलों में। तो टीचर्स आर वेकेशनल स्टाफ, लाइब्रेरियंस आर वेकेशनल स्टाफ, स्टाफ नर्स आर वेकेशनल स्टाफ इन एनवीएस। किस तरह से लीव अकाउंट में इन फार्मूलों का यूज करते हुए हम लीव क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। वी विल सी इट थ्रू सम इलस्ट्रेशंस। सो फर्स्ट इलस्ट्रेशंस हम देखेंगे, दैट इज फॉर नॉन वेकेशनल स्टाफ। Suppose an LDC joined service on 15th February 2021 to credit EL in his leave account. How to credit EL in his leave account? So as per rule 26, leave always credited and earned leave always credited on 1st January and 1st July। 15 days है ना लीव मिलती है ना, 1st January and 1st जुलाई को 15 days, मीन्स टोटल 30 days इन ए ईयर। तो लीव का फॉर्मूला ये है कि ऑलवेज इट शुड बी क्रेडिटेड फॉर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ का मतलब होता है इंक्लूसिव ऑफ है ना दिस फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ। अगर मंथ में एक दिन भी कम है तो that is not treated as completed calendar month. So now this LDC is appointed on 15th January 2021. इसको कितना लीव क्रेडिट होगा फ्रॉम February to 30 June? February month हमको छोड़ना पड़ेगा। We have to leave this February month, ना, we have to ignore because he joined on 15th February. So February is not a completed calendar month. Completed calendar months कितने हो गए? 4, March, April, May and June. So up to 30 June, first we will credit at the rate of 5/2. Oh, calculation देखें, 4 multiplied by 5/2 is equal to 10. So 10 days will be credited. Then on 1st July, advance credit of 15 days, EL, and then 1st January 2022, 15 days, 1st July 2022, 15 days. Total कितना हुआ? 10 plus 15, 25 plus 15, 40 plus 15, 55 days. 55 days EL will be credited if he has not availed any leave, earned leave during this period. So 55 days will be there as on 31st December 2022 in his leave account. Simultaneously, जो नॉन वेकेशनल स्टाफ है दे आर एंटाइटल फॉर HPL ऑल्सो। HPL मीन्स हाफ पे लीव। हाफ पे लीव का फॉर्मूला है 5/3। तो 5/3 से अगर हम कैलकुलेट करें 4 मंथ्स, कंप्लीटेड 4 मंथ्स के लिए, तो कितना होगा? 4 multiplied by 5 divided by 3 is equal to 6.6. तो always rule says leave should be rounded off. If it is 0.5 and above, so it should be rounded off to next above. If it is less than 0.5, so then next below. तो यहाँ आता है 6.6. So 6.6 will be rounded off to 7 days. 7 days हो गया, first up to 30 June 2021, then 10 days on 1st of July 21, 17 हो गया, 17, then 1st January 2022, again 10 days will be credited in advance. So 17 plus 10, 27, and then again on 1st July 2022. So 27 plus 10, 37. So if he has not availed any leave during this period, HPL, the total leave कितना होगा? 37 days will be there in his account. Now we will see
The next example illustrations for vacational staff. Vacational staff कौन होते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लाइब्रेरियन है, टीचर्स है, दे आर वेकेशनल स्टाफ. दे आर एंटाइटल्ड फॉर वेकेशन, समर वेकेशन एंड विंटर ब्रेक. तो इनका लीव कैसे क्रेडिट होता है, उसका फॉर्मूला है क्रेडिट ऑफ लीव का 5/6. सपोज a TGT has joined on 3rd July 2021. How you are going to credit the year in his account? तो जुलाई में 3rd को ज्वाइन किया है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ. एक दिन भी अगर मंथ में कम है तो वो आपको इग्नोर करना पड़ेगा. यू हैव टू इग्नोर दैट मंथ. सो नाउ वी विल काउंट लीव फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 5 months. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड December. So now according to formula we'll calculate 5 multiplied by 5 divided by 6, which comes to 4.1. Again it will be rounded off to next below. 0.1 is to be ignored. 4 days. 4 days हम credit कर देंगे up to 31st of December 2021. Then 1st January 2022 को advance credit 5 days, because vacational staff are entitled for 5 days of PL in a half year. Total 10 days in a year, which shall be credited in advance on 1st January and 1st July. 1st January 2022, 5 days, 4 plus 5, 9. And then again on 1st July 2022, 9 plus 5, 14. So as on 31st December 2022, इसके अकाउंट में कितना लीव होगा? 14 days. If he has not availed any EL during this period. ठीक है. So now we will see the third formula for deduction, है ना, for debit of earned leave and half pay leave in case of non-vacational staff. एक एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका illustrations. Suppose an OS who is having 200 days of EL and 50 days of HPL as on 1st January 2022. 200 दिन उसका EL क्रेडिट है और HPL है as on 1st January 2022. And he has availed EOL, extraordinary leave, on for 15 days from 1st April to 15th April. Further, he was suspended between this 1st June to 30th June for 30 days. And due to misconduct, one charge sheet was issued to him and charges were proved against him after inquiry. Inquiry हुई, disciplinary authority ने inquiry करवाया, charge उसके against में थे, that were proved. So disciplinary authority after completion of proceeding treated the period of suspension as dies non. Major penalty होगी suppose उसको, तो इस suspension period was not treated as duty. Disciplinary authority has taken a decision to treat this period as dies non. ठीक है. तो dies non, which shall be counted as non-qualifying service for the purpose of leave, increment, pension, etc. It has been mentioned in his order. This is the period जो है 30 days, that will be treated as dies non, which shall not be counted for the purpose of leave, increment, pension, etc. etc. So now we have to deduct the EL as per rule. कितना हम डिडक्ट करेंगे भाई EL और डाइज नॉन के अगेंस्ट में? तो रूल सेज कि 1/10 ऑफ EOL एंड डाइज नॉन पीरियड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट, है ना, क्रेडिट ऑफ EL. तो EL उसे नेक्स्ट क्रेडिट कब मिल रहा है? 1 जुलाई 2022. तो उसका कैलकुलेशन अब देखिए कि डिडक्शन जो है किस तरह से होगा. पहला डिडक्शन हम करेंगे EOL फॉर 20 डेज के लिए, है ना. हमने 15 डेज लिखा था, यहाँ नीचे 20 डेज के है, सिर्फ 15 डेज हम कर लेंगे. करेक्शन में 15 डेज के लिए उसका हो जाएगा 15, ठीक है.
multiplied by 1/10 which comes to 1.5. तो 1.5 means 2 days. ठीक है ना, राउंड ऑफ कर दिया हमने. तो 2 days will be deducted for UL for 15 days and further his suspension period of 30 days was treated as dies non. Hence EL will be reduced again 1/10 of this 30 days of dies non. So 30 multiplied by 1 divided by 10 which comes to 3. टोटल EL कितनी हमें EL डिडक्ट करनी पड़ेगी 3 + 2 5 डेज. क्रेडिट हम देंगे उसको 1 जुलाई को 15 डेज. 200 डेज था, टोटल क्रेडिट हो गया 215 एंड देन डिडक्टेड ड्यू टू EOL एंड डाइज नॉन -5. बैलेंस कितना बचा उसके पास में 210. सिमिलरली इसके पास में 15 डेज HPL था. HPL क्रेडिट मिला अगेन ऑन 1 जुलाई 2022. टोटल हो गया इसका HPL 60 डेज. अब रूल सेज इफ एनी पीरियड इज ट्रीटेड एज डाइज नॉन तो 1/18 ऑफ HPL शुड ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द लीव अकाउंट HPL अकाउंट. कितना दिन है भाई डाइज नॉन 30 multiplied by 1 divided by 18 which comes to 1.6. So 1.6 will be rounded off to 2 days. तो डाइज नॉन के अगेंस्ट में हमको 2 days HPL भी काटना होगा. तो लेट अस डिडक्ट 2 days. तो 60 - 2 58. एज ऑन 31 दिसंबर उसके अकाउंट में कितना लीव बचेगा 58 डेज ऑफ HPL एंड 210 डेज ऑफ EL. तो ये हो गया हमारा दिस इज इलस्ट्रेशन 3. एंड नाउ लास्ट हम देखेंगे टीचर्स के केस में, वेकेशनल स्टाफ के केस में प्रोपोर्शनेट EL या क्रेडिट या डेबिट कैसे होता है. तो डिडक्शंस पहले देखेंगे. टीचर के केस में सपोज PGT was having 90 days of EL as on 1st January 2022. He availed 20 days from 1st February to 20th February on medical ground. EL ले लिया इसने 20 दिन का. ठीक है, तो 20 डेज के अगेंस्ट में इनके लिए फार्मूला जो लगाते हैं वेकेशनल स्टाफ के लिए फॉर रिडक्शन ऑफ EL दैट इज 1/30. 90 डेज उसने अवेल किया, 20 डेज EL अवेल किया, 20 डेज मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 30 विच कम्स टू 0.6. 0.6 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना होगा 1 डे. तो 1 डे विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज लीव अकाउंट EL अकाउंट ऑन 1 जुलाई. तो क्रेडिट दिया हमने भाई 5 डेज एंड देन 90 + 5 95 हो गया, -1 डे हमने डिडक्ट किया ड्यू टू EL 94 डेज बचा. अब इसने वेकेशन में 30 डेज काम किया है. ही वॉज है ना रिटेन्ड ड्यूरिंग वेकेशन फॉर 30 डेज ऑन ऑफिशियल ड्यूटी. तो अगेंस्ट ड्यूटी परफॉर्म ड्यूरिंग वेकेशन है ना, उसके अगेंस्ट में प्रोपोर्शनेट EL मिलता है. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला से 1/3 ऑफ द प्रोपोर्शनेट लीव है ना. He has performed duty for 30 days है ना. In lieu of duty performed he will get 1/3 proportionate EL which shall be credited to his account. So 30 multiplied by 1 divided by 3 which comes to 10 days. So 10 days will be credited to his EL account which comes to 94 + 10 104 days. तो 104 days इसके अकाउंट में टोटल एज ऑन 31 दिसंबर 2022 EL बैलेंस होगा. तो आई होप ये सारे कैलकुलेशंस आपको समझ में आ गए होंगे. तो कभी भी कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ध्यान रखिए. लीव इज ऑलवेज है ना क्रेडिटेड फॉर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ. और डिडक्शंस जो होता है, डिडक्शंस डेज के ऊपर होता है. दैट वी ऑलरेडी मेंशन इन ऑल दिस 4 फार्मूलाज. आई होप आपको ये सारे फार्मूलाज समझ आ गए होंगे. इनका यूज़ करके आप किस तरह से क्रेडिट और डेबिट कर सकते हैं लीव अकाउंट में है ना. वेकेशनल स्टाफ हो चाहे नॉन वेकेशनल स्टाफ, दोनों का हमने एग्जांपल बता दिया. थैंक यू.